Good evening, everyone. I am Jayesh Gadewar. Welcome you all for the online webinar on overcoming fear of failure by Avinash Sate sir. Avinash Sate sir has completed his master's in construction management. Avinash sir is also a managing director of ABC Group, which work in different educational trainings. He is a motivational speaker, youth icon, business consultant, and trainer by professional. He has his own YouTube channel, which has more than 25,000 plus subscribers. He has delivered many online professional motivational talks at different government organizations and reputed industries. He has also written a book named The Winning Ages Champions Mindset. Without wasting much of your time, sir, I request Avinash sir to start with the session. Okay, so thank you so much. First of all, I would like to thank MIT College of Aurangabad Civil Department, Honorable Principal Santosh Bhosle sir, HOD Rashmita ma'am, and my good friend Rahul Agrawal sir, and all the student coordinators, especially Mr. Jayesh sir, Mr. Adesh sir, Mr. Shubham sir, and whole team for arranging such a webinar, motivational webinar for all of the students. So today's topic, we have decided today's topic is overcoming fear of failure. So today we are going to talk about the fear which everyone is facing, especially in the current scenario. अभी हम लोग देखते हैं कैसे कोविड की वजह से हर तरफ अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट है एंड इन अनसर्टेनिटी के एनवायरनमेंट में एग्जाम कैंसल्स हो रहे हैं, एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, कॉलेजेस बंद है, uncertainty है regarding to our career, and we all are facing the situation of fear of failure. असफलता का डर हम पर हावी हो रहा है. तो इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं and we are going to talk about how to overcome this fear of failure. First of all, we need to understand what is fear of failure and how it overtakes all the feelings and how it hijacks all our emotions. My dear friends, see, whenever you set a goal or whenever you start something new in life, whether you are as a student or an entrepreneur or a working professional, a actor, a sportsman, everyone, हर कोई इस धरती पर जितने भी लोग हैं, everyone faces this feeling and that is fear of failure. देखना, हम जब भी कोई चीज की शुरुआत करते हैं, कोई भी चीज हम शुरू करने की कोशिश करते हैं, we face this fear of failure. If I ask all of you, how many of you have a goal in life? So many people are uncertain, many people are unpredictable about their own goals. हम लोगों को पता ही नहीं हम लोगों का गोल क्या है. बहुत बार हम सोचते हैं गेट आईएएस करेंगे, कभी सोचते हैं सॉफ्टवेयर्स में काम करेंगे, कभी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट दिमाग में आता है, कभी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आता है, कभी कुछ और करने की इच्छा होती है, बट वी आर ऑलवेज इन अ सिचुएशन, वी आर ऑलवेज कंफ्यूज, और हम लोग हमेशा इस फियर ऑफ फेलियर की भावना की वजह से पीछे चले जाते हैं या हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं. ये दोस्तों एक ऐसी फीलिंग है जो हर किसी को पीछे खींचते रहती है. लेकिन टुडे आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू दैट इस दुनिया में जितने भी लोग इस फीलिंग के ऊपर मात कर पाते हैं, इस फीलिंग को समझ पाते हैं, इस फीलिंग को ओवरटेक करके आगे जा पाते हैं, वही लोग इस दुनिया में इंपैक्ट कर पाते हैं. दोस्तों, फियर ऑफ फेलियर की वजह से मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स गोल ही अपना सेट नहीं करते हैं. उन लोगों को पता ही नहीं होता है क्या करना है. दैट इज बिकॉज ऐसा लगता है हम लोगों को बहुत बार कि मैंने अगर गोल सेट कर लिया और अगर वो पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, और इस फीलिंग की वजह से फिर हम लोग पीछे चले जाते हैं या मैं कहूंगा आगे नहीं बढ़ पाते हैं. एज आई सेड, ये फीलिंग हर किसी को आती है, ये फीलिंग हर किसी के मन में होती है. वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो इसको ओवरटेक कर पाते हैं, इस पर मात कर पाते हैं. I just want to share one small story about God of cricket, सचिन तेंदुलकर. हर कोई हमारे भारत में सचिन से प्यार करते हैं एंड सचिन तेंदुलकर इज वेरी स्पेशल पर्सनैलिटी फॉर ऑल ऑफ अस. आई वांट टू शेयर वन स्टोरी फ्रॉम सचिन्स लाइफ. 2000 की बात है दोस्तों. 2000 में सचिन तेंदुलकर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन दैट करंट एरा. और ऑस्ट्रेलिया के भी एक फेमस बॉलर थे, लेग स्पिनर, आप नाम जानते हैं, शेन वॉन.
जिनका भी काफी बोलबाला था उस समय, काफी स्पिन से प्रभावी अपनी बॉलिंग करके इम्प्रेस कर रहे थे पूरी दुनिया के ऊपर। तो बात 2000 की है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आने वाली थी और ये पहला मौका था जब सचिन और शेन वॉर्न एक दूसरे को फेस करने वाले थे। आई रिपीट, ये पहला मौका था जब सचिन और शेन वॉर्न एक दूसरे को फेस करने वाले थे। अब इस समय में बहुत सारे न्यूज के ऊपर या फिर इधर उधर की बातों से सचिन को एक न्यूज आती है कि शेन वॉर्न तुम्हें कोई नई ट्रिक अप्लाई करके आउट करने वाले हैं। आई रिपीट, सचिन को एक न्यूज आती है कि शेन वॉर्न तुम्हें कोई नई ट्रिक अप्लाई करके आउट करने वाले हैं। और इससे क्या होता है, देखिए इस फीलिंग की वजह से, इस न्यूज की वजह से सचिन के अंदर फियर ऑफ फेलियर की भावना आती है। जब भी हम किसी भी मुकाम पे कंपीट कर रहे होते हैं, कोई कंपटीशन में होते हैं, जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस समय हम लोगों को असफलता का डर सताने लगता है। एंड एज आई सेड, वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो इस फीलिंग पर मात करते हैं। अब सचिन को जब ये न्यूज आई तो सचिन उन लोगों में से नहीं है जो फियर ऑफ फेलियर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। सचिन ने क्या किया, 2 महीने पहले जब उनको न्यूज आई तो सचिन ने रिसर्च करना शुरू किया कि शेन वॉर्न का सबसे डेंजरस बॉल कौन सा है। और अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत सारे ऐसे बॉल शेन वॉर्न उस समय डालते थे, जैसे एक रफ पैच पे लेग स्पिन करके वो पीछे से, यानी बैट्समैन को लगता था कि ये बॉल वाइड हो जाएगी तो वो बॉल वो लीव कर देते थे, लेकिन वो बॉल पीछे से आके लेग स्टंप उखाड़ के, यानी बैट्समैन उस समय आउट हो जाते थे। तो सचिन ने देखा कि इस प्रकार की बॉलिंग शेन वॉर्न करने वाले हैं, तो सचिन ने 2 महीने पहले ही प्रैक्टिस शुरू कर दी दोस्तों। वो फियर ऑफ फेलियर की वजह से डरे नहीं, फियर ऑफ फेलियर की वजह से वो निराश नहीं हुए, ना ही उन्होंने गिव अप किया। देखिए हमारे लाइफ में क्या होता है, हम लोग जब भी फियर ऑफ फेलियर की भावना आती है, मैं आपको एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूं। मैं भी सिविल इंजीनियरिंग से ही बिलोंग करता हूं, मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन हुआ है। तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों को, यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बीच में मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट था उसका बहुत ज्यादा फियर हम लोगों के अंदर था। मुझे आज भी याद है, मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट था कि मैकेनिक्स बहुत डिफिकल्ट है, ये फर्स्ट ईयर के पहले दिन से मतलब हमारे अंदर कल्टीवेट किया गया था कि मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा डेंजरस सब्जेक्ट है। अब जैसे ही मैकेनिक्स का उगम होता है हमारे करियर में तो हम लोग डरने लगते हैं उससे, पढ़ाई नहीं करते हैं, और बहुत बार वो बैक भी रहा है हम सब लोगों के। सॉम का भी ऐसा ही हुआ है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का भी ऐसा हुआ है। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा, जब मैकेनिक्स हम लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था उस समय पे हम लोगों को उसका डर था। लेकिन जैसे ही मैकेनिक्स पार करके हम सॉम तक पहुंचे, सॉम क्रॉस करके स्ट्रक्चरल एनालिसिस तक पहुंचे, स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्रॉस करके स्ट्रक्चरल डिजाइन तक पहुंचे, पीछे मुड़ के जब देखा मैकेनिक्स तो अभी बहुत वो साधारण हमें लगने लगा था, राइट। तो उस समय जिन लोगों ने फियर ऑफ फेलियर अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उन लोगों ने मैकेनिक्स में अच्छे मार्क्स लिए। लेकिन जो लोग, इंक्लूडिंग मी, मैकेनिक्स में जो डर गए, वो उसके सामने हार गए। अब देखिए सचिन की मैं बात कर रहा था, सचिन ने 2 महीने पहले ही प्रैक्टिस शुरू कर दी कि अभी शेन वॉर्न मुझे कोई नई ट्रिक अप्लाई करके आउट करने वाले हैं। तो भारत के 2 फेमस लेग स्पिनर्स तब रणजी में खेलते थे, सईराज बहुतुले और नीलेश कुलकर्णी, दोनों को बुलाया और दोनों को एक रफ पैच क्रिएट करके बोला कि कंटिन्यूअसली 8-9 घंटे हम प्रैक्टिस करेंगे अगले 2 महीने के लिए, क्योंकि शेन वॉर्न को मुझे फेस करना है। अब जैसे ही सैराज बहुतुले और नीलेश कुलकर्णी बॉलिंग डालने लगे, एक रफ पैच क्रिएट करके सचिन ने कंटिन्यूअस एक ही बॉल पे प्रैक्टिस की। रफ पैच पे लेग स्पिन करते थे ये दोनों लेग स्पिनर, इतनी ज्यादा दोस्तों प्रैक्टिस कर दी कि जैसे ही मैच शुरू हो गई, जैसे ही पहला बॉल शेन वॉर्न ने सचिन के सामने डाला, तो पहला ही बॉल सचिन ने बाउंड्री के पार लगा दिया, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर दी थी। अब देखिए दोस्तों, लीजेंड जो होते हैं, सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, इस फियर ऑफ फेलियर की भावना को वो पॉजिटिवली लेते हैं। फियर ऑफ फेलियर आपसे कुछ कहता है दोस्तों, फियर ऑफ फेलियर आपको एक सिग्नल दे रहा है। जब भी आपके सामने डर, असफलता का डर आपको सताने लगे, तो आप एक चीज ध्यान में रखिए, वो आपको बोल रहा है बी प्रिपेयर। ही सेइंग बी प्रिपेयर, तैयार हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको एक और एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो आप एक रेलवे ट्रैक पे खड़े हो और सामने से एक ट्रेन आपके सामने आ रही है, तो उस टाइम पे भी आपको फियर आएगा। ये फियर रैशनल फियर होता है।
और एग्जाम का फियर मैं कहूंगा इररेशनल हो सकता है, लेकिन इसको कैटेगराइज न करते हुए इसी को समझते हैं। देखिए, जब आपके सामने कोई ट्रेन आने लग जाती है, आप ट्रेन के सामने खड़े हो और जैसे ही वो ट्रेन आने लगती है, आपके अंदर भी फियर ऑफ फेलियर की भावना आएगी। आपके अंदर डर सताने लगेगा कि ट्रेन आपके सामने आ रही है। उस समय आप क्या करोगे? आप गिव अप करके वही रहोगे या वहां से दौड़ने की कोशिश करोगे, उससे बचने की कोशिश करोगे? आप वहां से भागने की कोशिश करोगे, आप बचने की कोशिश करोगे। और दोस्तों, हमारे इररेशनल डर में भी ऐसा ही होता है। जब भी आपके सामने फियर ऑफ फेलियर आता है, ये आपसे एक सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है कि तैयारी में लग जाओ, रियलिटी को फेस करो। इससे भागने की जरूरत नहीं है, इससे बचने की जरूरत है, इसको ओवरटेक करने की जरूरत है। और इसको ओवरटेक करने के बाद देखिए कैसे हमारे जीवन में हम नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। जितने भी लीजेंड्स है, देखिए इसी प्रकार से इन लोगों का माइंडसेट होता है, इसी प्रकार से वो उसको मात करने की कोशिश करते हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, सुंदर पिचाई जो सीईओ है गूगल के, आप भी इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, पूरा 1 घंटे का इंटरव्यू हर्षा भोगले सुंदर पिचाई का इंटरव्यू ले रहे हैं। अब इसमें हर्षा भोगले एक बहुत ही सुंदर सा सवाल सुंदर पिचाई को पूछते हैं। वो पूछते हैं कि दुनिया के सारे ग्रेट स्टार्टअप्स, वो क्या पूछते हैं? दुनिया के सारे ग्रेट स्टार्टअप्स यूएस में सिलिकॉन वैली में ही क्यों पैदा होते हैं? अब सुंदर पिचाई जो भारत में भी रह यूएस में भी काम करते हैं, वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट काफी उन्होंने देखा है। अब जैसे ही ये सवाल आता है, सुंदर पिचाई स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट में जो कल्चर कल्टीवेट किया गया है वो भारत से विभिन्न है, भारत से टोटली डिफरेंट है। हमारे भारत में जब कोई बच्चा फेल हो जाता है, जब कोई बच्चा असफल हो जाता है, तो हम लोग उसे नालायक कह देते हैं। हम बोलते हैं ये यूजलेस है बच्चा, ये कोई काम का नहीं है। और हमेशा देखिए, फियर ऑफ फेलियर आपके सामने जब भी आता है, आपको उस फीलिंग से डर लगता है कि यार मान लो मैं फेल हो गया, मैं मेरे बिजनेस में फेल हो गया, मैं मेरे सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो मेरे क्लास के मेरे दोस्त क्या बोलेंगे? आपको आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे? आपके रिलेटिव्स क्या कहेंगे? जब भी आप कोई भी चीज करने की कोशिश करते हो, जब भी फियर ऑफ फेलियर की भावना आती है, आप डरने लगते हो कि लोग क्या कहेंगे। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो या फिर भारत हो, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे हम लोगों के माइंड में कल्टीवेट किया गया है कि फेलियर यानी नेगेटिव थॉट है, फेलियर यानी कोई बुरी चीज है, फेलियर यानी एम्बैरेसमेंट है, फेलियर यानी एंड ऑफ द वर्ल्ड है। आपने देखा होगा कैसे फेलियर के बाद बच्चे सुसाइड भी करने लगते हैं। आपने देखा है कैसे 10th में अगर कम मार्क्स आए तो सुसाइड करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपने देखा है इंजीनियरिंग में भी ये सब होता है। थ्री इडियट्स मूवी में भी ये दिखाया है कैसे हम लोग फेलियर से डरने लगते हैं और गिव अप कर देते हैं। तो सुंदर पिचाई कहते हैं कि भारत में जो कल्टीवेट किया गया है क्लाइमेट, वो गलत तरीके से किया गया है। दोस्तों, इसको बदलने की जरूरत है। हमारे पेरेंट्स से या फिर उनके पेरेंट्स से हम लोगों को हमेशा यही सिखाया गया है कि फेलियर माने बुरी चीज है, फेलियर यानी गलत चीज है। इसीलिए हम फेलियर से दूर भागने की कोशिश करते हैं, फेलियर से बचने की कोशिश करते हैं, और अल्टीमेटली इस फियर की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सुंदर पिचाई कहते हैं वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट में, चाहे यूएस हो, कनाडा हो, यहाँ पे एक कल्चर कल्टीवेट किया गया है कि फेलियर इज नॉट अ नेगेटिव थॉट, फेलियर इज अ पॉजिटिव थिंग, फेलियर इज अ एक्सपीरियंस। जब भी वहां पे बच्चे फेल हो जाते हैं तो उनको एक्सपीरियंस के तौर पे देखा जाता है। हमारे इंजीनियरिंग में कोई ईयर डाउन हो जाता है तो हम लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, हम लोग उसको नेगेटिव थॉट के तौर पर लेते हैं। हम उसको एक्सपीरियंस के तौर पे क्यों नहीं लेते कि हमें और ज्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है, हमें और समय मिल रहा है बफरिंग का। यहाँ पे सुंदर पिचाई कहते हैं कि सिलिकॉन वैली में दुनिया के सारे ग्रेट स्टार्टअप इसीलिए पैदा होते हैं क्योंकि फेलियर को देखने का नजरिया ही दोस्तों अलग है। फेलियर को वो एकदम से पॉजिटिवली लेते हैं। सिलिकॉन वैली की वो बात बताते हैं कि वहां पे स्टार्टअप्स जो होते हैं ना, वहां पे इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर करते हैं, तो वो पता है आपको क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि कोई एंटरप्रेन्योर अगर 2 बार अपने बिजनेस में फेल हुआ है तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, उसके ऊपर ज्यादा पैसा लगाएंगे, ना कि न्यू कमर्स के ऊपर। हमारे यहाँ पे अगर कोई एंटरप्रेन्योर फेल होता है तो उस पे इन्वेस्टर पैसा लगाने की हिम्मत भी नहीं करेगा।
उसको लगेगा कि ये तो फेलियर है, इसको कुछ आता नहीं है। यूएस में, सिलिकॉन वैली में उसको देखने का ही नजरिया अलग है। वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट में ये कल्चर कल्टीवेट किया गया है और इसी की वजह से स्टार्टअप्स वहां पे ज्यादा है। स्टार्टअप्स में कहूंगा वो नजरिया ही दिखने का अलग है। सुंदर पिचाई के वर्ड्स में आपको बताता हूँ, वो बताते हैं कि प्राइड ऑफ ऑनर की तरह देखा जाता है। एक बार कोई एंटरप्रेन्योर फेल हुआ है, बहुत बढ़िया। 2 बार फेल हुआ है, बहुत बहुत बढ़िया। और 3 बार फेल हुआ है तो उसके ऊपर तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसको मालूम है फेल कैसे नहीं होना है नेक्स्ट टाइम। और इसी एस्पेक्ट को, इसी थॉट को, इसी प्रोसेस को हम लोगों ने हमारे अंदर भी लाने की जरूरत है। पेरेंट्स ने भी ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा फेल होता है। टीचर्स ने भी समझना चाहिए, हमारे दोस्तों ने, हम खुद ने भी ये पर्सपेक्टिव अगर हम लोग चेंज करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, फेलियर के तरफ हमारा नजरिया देखने का बदल जाएगा। जिससे क्या होगा, हम लोग और ज्यादा उस पे अगर उसका डर नहीं रहेगा तो उसके प्रति हम लोग फ्रेंडली हो जाएंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको गले लगा लेंगे फेलियर को। और जैसे हम उसको गले लगा लेंगे, हम उससे प्यार करने लगेंगे। और फेलियर से प्यार करना इज अ गुड थिंग। फेलियर बुरी चीज नहीं है दोस्तों। अगर आप ऑस्ट्रेलियन कमांडोज की अगर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर देखोगे, ऑस्ट्रेलिया में जो कमांडोज होते हैं उसका रिक्रूटमेंट जो होता है, उसका जो लास्ट राउंड होता है, उसमें इंटरेस्टिंगली यू विल नॉट बिलीव, लास्ट राउंड में उनको सवाल पूछा जाता है कि आप जिंदगी में कितने बार फेल हुए हैं। आई रिपीट, उनको पूछा जाता है जिंदगी में आप कितने बार फेल हुए हैं। और सरप्राइजिंगली जो कमांडोज जिंदगी में कभी फेल ही नहीं हुए हैं, जो कमांडोज जिन्होंने कभी लाइफ में फेलियर देखा ही नहीं है, उनको उस राउंड से इलिमिनेट किया जाता है। उन्हें कमांडो का पोजीशन नहीं दिया जाता है, उनका मिलिट्री में रिक्रूटमेंट नहीं किया जाता है दोस्तों। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी कल्चर ऐसा कल्टीवेट किया गया है कि जो फेल हुआ है उसी को ज्यादा पता है कि उस फेलियर से कैसे बचना है, उसको मात कैसे करनी है। और बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। वीरेंद्र सहवाग की भी बात करूंगा, अगर आप क्रिकेट के लवर हैं। मेरे ज्यादा एग्जांपल्स क्रिकेट से आएंगे बिकॉज आई एम अ क्रिकेट फैन। तो वीरेंद्र सहवाग की अगर बात करेंगे, मुझे आज भी याद है 2011 का वर्ल्ड कप जब हमने जीता था। तो आप देखना, वीरेंद्र सहवाग जब ओपनिंग को आते थे तो हर पहली बॉल को वो बाउंड्री के पार लगा देते थे। बहुत ज्यादा उस समय फेमस हो गया था कि वीरेंद्र सहवाग का पहला बॉल यानी बाउंड्री। तो वीरेंद्र सहवाग को यह सवाल पूछा गया था कि तुम पहले बॉल पे बाउंड्री क्यों मारते हो। दुनिया के 99.99% लोग पहले 2-4 बॉल डिफेंड करने में लग जाते हैं, कि पहले डिफेंड कर लेंगे, बॉलर के माइंड को रीड करने लगेंगे और फिर उसके बाद अटैक करेंगे, घाई क्या है। तो वीरेंद्र सहवाग इसका आंसर देते हैं। वीरेंद्र सहवाग बोलते हैं कि मैं पहले डिफेंड करता था, लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि जब मैं डिफेंड कर रहा था पहले 2-3 बॉलों को, तो बॉलर का कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ रहा था। बॉलर और कॉन्फिडेंटली आता था, बॉल डालता था। और बैट्समैन, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता था क्योंकि मैं डिफेंड कर रहा हूं। मैंने मेरा स्ट्रैटेजी चेंज किया। मैं पहली बॉल पे जब बाउंड्री मारने लगा तो बॉलर के दिमाग में फियर आ गया, उसके माइंड में फियर ऑफ फेलियर आ गया कि यार पहली बॉल पे बाउंड्री लगा दिया तो उसका लाइन और लेंथ खराब हो जाएगा, उसका टप्पा गलत हो जाएगा, उसका बॉलिंग का स्पीड गलत हो जाएगा और उससे कॉन्फिडेंस उसका लो हो जाएगा। अब देखने का नजरिया देखिए कैसा है वीरेंद्र सहवाग का भी। वीरेंद्र सहवाग जब पहले बैटिंग करते थे तो उनको समझ में आ गया कि यार थोड़ा सा बॉलर अगर अच्छा है, मलिंगा है, ब्रेटली है, तो क्या हो जाता था, डर डर यार बैट्समैन को भी डर लगता है बॉलर का, बॉलर को भी बैट्समैन का लगता है। लेकिन उस परिस्थिति में कौन किसके ऊपर हावी होता है, इसी के ऊपर सारा खेल है। अब वीरेंद्र सहवाग को डर लगने लगा था असफलता का, आउट होने का। तो वीरेंद्र सहवाग देखो, फियर ऑफ फेलियर जब वीरेंद्र सहवाग के अंदर आया तो फियर ऑफ फेलियर से वो डरे नहीं, उससे डिफेंड करने की कोशिश नहीं की। वीरेंद्र सहवाग ने उल्टा बैट्समैन को अटैक किया। यानी फियर ऑफ फेलियर क्या बोलता है, बी प्रिपेयर, तैयार हो जाओ। 1-2 शॉट्स खेलने के बाद क्या हुआ, बॉलर पे वो चीज हावी होने लग गई। द सेम पैटर्न माय डियर फ्रेंड्स, आई अगेन रिपीट, कि जितने भी लोग इस दुनिया में इंपैक्ट करते हैं, जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, उनके अंदर फियर ऑफ फेलियर को देखने का नजरिया अलग है। वो एक सिग्नल देता है, उस सिग्नल को पहचानिए, उस सिग्नल को समझिए, उस सिग्नल को फॉलो कीजिए। इतना ही नहीं, देखिए जो पब्लिक स्पीकिंग सेक्टर में है, जैसे मैं पब्लिक सेक्टर में, मेरा एग्जांपल भी आपको बताने की कोशिश करता हूं। मेरा भी अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो मैं इंजीनियरिंग में D10 स्टूडेंट हूँ। D10 स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। D10 यानी हम लोगों को, मुझे तो ऐसा लगता था कॉलेज में कि मुझे डराया जा रहा है कि बेटा तू D10 हो जाएगा, तू D10 हो जाएगा।
जब मैं कॉलेज में था तो मेरा अटेंडेंस कम था, तो मैं उस समय मैं डरा नहीं, मेरे को डिटेन किया गया उस समय। मेरा जो पर्सनैलिटी था वो एकदम शाय बॉय जैसा था, मैं ज़्यादा बात नहीं करता था और स्टेज पे जाके बात करना वाज़ समथिंग मेरे मतलब बस की बात ही नहीं थी। लेकिन फेलियर बार-बार फेलियर देखने की वजह से जब 2014 में मैं पास आउट हुआ, जब मैंने मेरा बिज़नेस स्टार्ट किया, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यार मेरे को फ़ियर स्टेज का है, मुझे फ़ियर आगे जाके बात करने का है। मुझे इसके ऊपर मात करनी पड़ेगी क्योंकि अगर मैं बात ही नहीं कर पाऊँगा स्टेज पे जाके, अगर मेरे को वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा तो आई कैन नॉट ग्रो इन माय लाइफ। और जब भी फ़ियर ऑफ फेलियर आता था, जब भी आज भी जब मैं स्टेज पे जाता हूँ, कहीं न कहीं नर्वसनेस आता है, हर किसी को आता है दोस्तों। स्वामी विवेकानंदा जी सबके गुरु हैं। स्वामी विवेकानंदा जी भी बताते हैं कैसे स्टेज पे जाने से पहले उनको भी नर्वसनेस आता था। मुझे एक बात बताइए, स्वामी विवेकानंद जिनको हम पूजते हैं, उनको अगर फ़ियर ऑफ फेलियर आता है तो हम क्या चीज़ हैं? तो फ़र्क इतना ही है, फ़ियर ऑफ फेलियर को जो पॉज़िटिव तरीके से लेते हैं, उसको उससे डरते नहीं हैं, उसका सिग्नल सुनते हैं, वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, आप में खामियाँ हैं, वही लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने लाइफ़ में और वही लोग इम्पैक्ट करते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा फ़ियर ऑफ फेलियर हमें बी प्रिपेयर होने की चेतावनी दे रहा है, तैयार होने की चेतावनी दे रहा है। मैं आपको एक केस स्टडी से समझाता हूँ कि फ़ियर ऑफ फेलियर या फिर फेलियर को देखने का नज़रिया बदलने से क्या फ़र्क पड़ता है। केस स्टडी लेते हैं हम इज़राइल की। अगर इज़राइल का आप नक्शा देखोगे, इतना छोटा-सा नक्शा है। इज़राइल के चारों डायरेक्शन से सारे दुश्मन देश है उसके, कोई भी उसका दोस्त नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल भारत जैसी सिचुएशन है। अभी भारत के सामने नेपाल है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश तो भी फिर भी ठीक है, पाकिस्तान है उस साइड, अभी चाइना है इस साइड, श्रीलंका भी चाइना के इन्फ्लुएंस में। तो इसी प्रकार की कुछ सिचुएशन इज़राइल की भी है। इज़राइल में भी आप अगर देखोगे तो पूरे साइड से दुश्मन देश वहाँ पे घिरे हुए हैं। इज़राइल का पॉपुलेशन जीडीपी के ऊपर मैं आता हूँ। सबसे पहले देखिए इज़राइल का मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि सारे दुनिया के बड़े-बड़े एमएनसी कंपनीज़ जैसे इंक्लूडिंग गूगल है, सैनडिस्क के जो पेन ड्राइव बनाते हैं, इंटेल का कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी है, ओरेकल है, सिस्को जैसे हम वो इंटरनेट के राउटर, स्विचेस जो यूज़ करते हैं ना, वो सिस्को बनाती है। सैप का कंपनी आपको मालूम होगा जो ईआरपी बनाती है। तो दुनिया के जितने भी बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं, यू विल नॉट बिलीव मेरा एक टेड टॉक है यूट्यूब पे, इसके ऊपर स्पेशल बात किया है मैंने इज़राइल के ऊपर। तो इज़राइल का अगर आप मैप देखोगे दुनिया के जितने भी एमएनसी कंपनीज़ हैं, उसके हेडक्वार्टर्स इज़राइल में है, ना कि यूएस में है। यूएस में भी अच्छे खासे कंपनीज़ है, लेकिन इज़राइल में ज़्यादा आर-एन-डी होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इनोवेशन होता है। तो इज़राइल में जितने भी आर-एन-डी सेंटर्स हैं, वो इज़राइल में है। अब सिंपल अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि इतने आर-एन-डी सेंटर्स इज़राइल में ही कैसे है? हमारे देश में क्यों नहीं है या कोई और देश में क्यों नहीं है? तो हमारे अंदर एक फीलिंग आ सकती है। देखिए, हम बोलते हैं हमारे इधर कंपनीज़ क्यों नहीं है? क्योंकि पानी नहीं है, जायकवाड़ी का पानी हम लोगों को नहीं अवेलेबल होता है या व्हाटएवर बारिश कम है, लैंड नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, हम एक्सेट्रा, एक्सेट्रा ब्लेम करने में लग जाते हैं। अब इज़राइल का अगर आप मैप देखोगे, तो अगर आपको लगता है कि इज़राइल में ज़्यादा अच्छे टैलेंट आपको मिलते हैं, इसलिए कंपनीज़ वहाँ पे जाती है, तो आई वांट टू हाइलाइट पॉपुलेशन इज़ ओनली 90 लाख, मुंबई से भी कम है। मुंबई से भी नक्शा भी छोटा है, मुंबई से पॉपुलेशन भी लगभग कम है। कितना छोटा एरिया, कितना कम पॉपुलेशन। जीडीपी की बात करोगे, जबरदस्त जीडीपी है। एरिया भी मैंने जैसे कहा छोटा है। इतना देखो एडवर्सिटी कितनी है देश में। बारिश मैं कहूँगा मराठवाड़ा जो हमारा महाराष्ट्र का मराठवाड़ा है, उससे भी कम बारिश इज़राइल में आती है। लेकिन आप देखो एग्रीकल्चर में जबरदस्त इनोवेशन है। हम जो ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं ना, बुक्स में पढ़ते हैं हम ड्रिप इरिगेशन सिविल में। ये ड्रिप इरिगेशन 1960s के आसपास उन्होंने यूज करके उसको फेंक भी दिया है। उसके आगे उन्होंने क्या 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 इनोवेशन करे इरिगेशन में। आपके ही कॉलेज में मैं समझता हूँ इजराइल से बहुत सारे आर-एन-डी इसके काम भी चल रहे हैं एमआईटी कॉलेज में। तो यू आर अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो यहाँ पे इनका मिलिट्री देखिए, मिलिट्री भी कितना जबरदस्त है, बताने की जरूरत नहीं मिलिट्री के बारे में। इजराइल के इनोवेशन के बारे में आगे है, टेक्नोलॉजी के बारे में आगे है। एवरीथिंग इफ यू सी इजराइल इज अ मास्टरपीस। अब एडवर्सिटी की बात करेंगे तो भी इजराइल इज अ मास्टरपीस। एक तो जगह कम है, एक तो पॉपुलेशन कम है, एक तो पानी नहीं है मतलब बारिश नहीं है,
Everything is adverse, but in adversity, why they are leading? Because Israel also looks फियर ऑफ फेलियर की तरफ देखने का नजरिया अलग है दोस्तों. हम हमारे भारत का देखिए, हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी मेरे हिसाब से पिछले 5 इयर्स में वो सुधरा है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज नथिंग बट कितने कंफर्टेबल है हम बिजनेस शुरू करने में. तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हम 70-80 के आसपास कुछ आते हैं. बीच में 55 भी हमारा रैंक हुआ था, फिर से हम अभी नीचे है. तो 60-70 के रैंकिंग पे हम लोग चल रहे हैं, मे बी उससे आगे भी हो सकते हैं. मतलब वी आर नॉट कंफर्टेबल इन डूइंग बिजनेस, वी आर नॉट कंफर्टेबल इन डूइंग बिजनेस, यानी वी आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग इनोवेशन. अब बॉयकॉट चाइना का भी चल रहा था बीच में, अभी भी चल रहा है. बॉयकॉट चाइना को, अगर हमको सही में बॉयकॉट करना है चाइना को, तो हम लोगों को इनोवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट्स हम खरीदते, हम पागल नहीं है. यहाँ पे उस प्रोडक्ट्स की कीमतें कम है, सस्ते में बनाता है चाइना, और इसीलिए वी आर नॉट एबल टू compete. हम लोगों को सीरियसली अगर compete करना है, मैंने यूट्यूब पे इसका एक वीडियो भी बनाया, आप देख लीजिए. यानी हम लोगों को हमारे फेलियर की तरफ का नजरिया बदलना पड़ेगा. फेलियर के डर से इनोवेशन ही नहीं होता है, हम लोग इनोवेट ही नहीं कर पाते. तो मेन हमारे साइकोलॉजी में अंदर वो छुपा हुआ है, हमारे माइंडसेट के अंदर वो सब छुपा हुआ है, उसको हमें जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकना ही पड़ेगा, उसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट इजराइल. देखिए कितना एडवर्सिटी में भी पीपल हियर आर इनोवेटिव. आप देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी आगे है, इनोवेशन में आगे है. एवरीवेयर इजराइल इज different. Now what Israel, why Israel is different, you can see they have converted that adversity into advantage. हम लोगों के सामने एडवर्सिटी आती है तो हम ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं, विच इज ट्रूली रॉन्ग. कोई चीज अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम एडवर्सिटी एडवर्सिटी हम हमारे परिस्थिति के ऊपर ब्लेम कर देंगे. हमारा टाइम खराब चालू है, हम बोलेंगे कि मार्केट खराब है सर, मैं तो अच्छा बंदा हूं, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, मार्केट खराब है सर, यहाँ का टाइम खराब चालू है, बोलेंगे पीछे शनि है मेरे, वट एवर. टाइम खराब चालू है, मार्केट, या बोलेंगे मेरी संगति खराब है, नहीं तो मैं सर पता नहीं क्या इनोवेशन कर सकता था. सो वी ऑलवेज ब्लेम एडवर्सिटी. व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम इजराइल इज we should convert that adversity into advantage. जब भी आपके सामने एडवर्सिटी आएंगी, जबकि जब भी आपके सामने कुछ दिक्कतें हैं, उसको कन्वर्ट करना है एडवांटेज में. रिस्क एवर्स से रिस्क टेकिंग में हम लोगों को कन्वर्ट होना है, हम लोगों को रिस्क लेना पड़ेगा. देखिए फेलियर की भावना आएगी, फेलियर से डर लगेगा, रिस्क लेने का प्रयास कीजिए. बिना रिस्क आप एक्सपीरियंस ले ही नहीं सकते लाइफ में. और कन्वेंशनल हमारे थॉट प्रोसेस से हमको इनोवेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, हम लोगों को इनोवेट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि इनोवेट अगर हम नहीं करेंगे तो हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते. नाउ यू कैन सी हाउ पीपल हु सी फेलियर एज अ डिफरेंट थिंग, वो आगे बढ़ जाते हैं. देखिए फेलियर को लर्निंग्स के तौर पर देखते हैं, फेलियर्स को एक्सपीरियंस के तौर पर देखते हैं, फेलियर को पॉजिटिव मैसेज के तौर पर देखते हैं. जबकि हम बहुत बार फेलियर को एम्बेरसमेंट के तौर पर देखते हैं, विच इज ट्रूली रॉन्ग. फेलियर को एंड ऑफ द वर्ल्ड की तरह देखते हैं, जैसे मैंने कहा सुसाइड कर लेते हैं. फेलियर इज अ पॉजिटिव थिंग, इट्स नॉट अ नेगेटिव थॉट. तो जब भी फेलियर आता है, नेगेटिव मैसेज वो नहीं आपको देने की कोशिश कर रहा है. तो अल्टीमेटली कंक्लूडिंग टुडेज व्हाट वी से फियर ऑफ फेलियर, इसको ओवरकम कैसे, देखो मैं आपको कुछ बुलेट पॉइंट देने की कोशिश करता हूं, उसको नोट कर लीजिएगा या फिर ध्यान में रख लीजिएगा. पॉइंट नंबर 1 इज रिफ्रेम योर गोल्स. मैंने आपको पहले सेशन शुरू होने से पहले कहा था, हम बहुत बार गोल सेट नहीं करते क्योंकि हमको डर लगता है कि गोल अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मुझे लोग क्या कहेंगे. तो सबसे पहले जब भी आपके मन में फियर ऑफ फेलियर की भावना आती है, सबसे पहले पीछे जाके चेक कीजिए कि आपने जो गोल सेटिंग किया है वो बराबर है या नहीं है. क्योंकि गोल सेटिंग अगर आपने गलत किया है, तो गोल सेटिंग अगर आपने गलत किया है तो गोल सेटिंग आपको चेंज करना पड़ेगा. क्योंकि फियर ऑफ फेलियर आपको एक क्या मैसेज दे रहा है, बी प्रिपेयर, तैयार हो जाओ. कुछ खामियां है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गोल सेटिंग में गलत होगा तेरा. तो फर्स्ट क्या है, रीफ्रेम योर गोल्स. गोल्स बदलने की कोशिश कीजिए, बदलने की आई मीन टू से शार्पन योर गोल्स. अगर गोल सेटिंग किया उसको प्रिसाइज कीजिए. बहुत बार क्या होता है, हम बोलते हैं कि सर मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा. कौन से दिन बनोगे बेटा, पता नहीं सर, एक दिन बनूंगा. तो दैट इज एक दिन जो बोलते हैं वो इज, दैट इज नॉट गोल, इट्स अ ड्रीम. गोल क्या होता है, सर मैं 23 मार्च को लेट्स से 2021 में मेरा ये कंपनी होगा, मेरा ये गोल है, मेरा घर होगा, मेरी कार रहेगी खुद की, वट आपके जो भी गोल है, फिटनेस के रहेंगे, करियर के, पैसों के, वट. तो एक प्रिसाइज उसको डेडलाइन देने की कोशिश कीजिए.
मैं सुबह मॉर्निंग में मेरी सिस्टर से बात कर रहा था। मेरी एक कजिन सिस्टर पुणे में इंजीनियरिंग करती है सिविल में। उनसे मैं सुबह बात कर रहा था मैं व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे मैंने उनको पूछने की कोशिश की कि कुछ सेट किया है, आगे क्या करना है, अभी फाइनल ईयर में है तो अभी आगे क्या सोचा है। तो शी सेड कि अभी तो गेट आईएएस कर रही हूँ, तो देखते हैं क्या होता है उसमें। तो मेरे को तुरंत समझ में आया कि गोल सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी आप इस तरह के आंसर्स नहीं दे सकते फाइनल ईयर में कि मैं गेट आईएएस कर रहा हूं, पता नहीं क्या होगा, और आपके पास कोई प्लान बी भी रेडी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि गेट आईएएस नहीं करना है, गेट आईएएस करोगे तो प्लान बी भी रेडी चाहिए, पता होना चाहिए यार आपको ये ट्रैक है, डेडलाइन है सर इसका, ये कंप्लीट नहीं होता है तो मेरे पास ये ट्रैक है, ये डेडलाइन है सर मेरा, ये डेडलाइन पे मैं देखिए। अगर आपके पास डेडलाइन नहीं है, आपके पास दिशा नहीं है, आपके पास डायरेक्शन नहीं है आपके करियर की, तो आप डेफिनेटली फंस जाओगे। A letter without an address where it reaches nowhere. In the same pattern, a student without a goal, without a deadline, where he or she will reach nowhere. Lost हो जाएंगे आप लोग। तो आप लोगों को डेडलाइन सेट करना पड़ेगा, डायरेक्शन देना पड़ेगा, उसको ट्रैक बनाइए अलग अलग। ये ट्रैक से जाऊंगा, एक टाइमलाइन बना दीजिए, रूम में लगा दीजिए। अरे उसको देखोगे आप तो आपके अंदर डोपामाइन रिलीज होगा, आपके अंदर सेरोटिन रिलीज होगा। ये क्या होता है, ये मोटिवेशन वाले केमिकल होते हैं, ये बॉडी से रिलीज हो जाते हैं और आपको एक मोटिवेशन देने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, अगर आप पटरी पे खड़े हो, सामने से ट्रेन आ रही है, तो आप भागने की कोशिश करोगे, वहां से बचने की कोशिश करोगे, उस पर मात करने की कोशिश करोगे। पता है आपको ये क्या होता है, आपके बॉडी में केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं जब भी आप वो ट्रेन देखते हो। आपके अंदर सेरोटिन रिलीज होता है, आपके अंदर वो डोपामाइन रिलीज होता है, आपके अंदर आनंदामाइड रिलीज होता है। ये केमिकल्स होते हैं मोटिवेशन वाले, ये अंदर से रिलीज हो जाते हैं और आपको ये सिग्नल देने की कोशिश करते हैं कि आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। अगर आप उस केमिकल को रिलीज ही नहीं कर पाए, अगर आपके सामने कुछ है ही नहीं, तो वो रिलीज ही नहीं होंगे, वो जनरेट ही नहीं होंगे, और आप लेजी बनते जाओगे, डायरेक्शनलेस बनते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो, आपको कुछ कुछ भी नहीं समझेगा क्या। तो यू नीड टू रिलीज दैट काइंड ऑफ केमिकल्स विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिगर्स। एक टाइमलाइन लगा दीजिए ना, ये प्लान है, प्लान बी है मेरा सर, ये टाइमलाइन है, ये डेडलाइन है, और ये पूरा अगले 3 सालों का मेरा डेडलाइन है, ये पूरा टाइमलाइन है। उसको देखने से केमिकल रिलीज होते हैं यार, आपको ड्राइव करते हैं, आपको भगाते हैं, ये आपको कुछ करने की इच्छा शक्ति देते हैं। कुछ भी नहीं लगाओगे, मोबाइल पे रहोगे, पड़े रहोगे, बिजी रहोगे। अभी इतना समय है हमारे पास, हम लोग अगर लर्निंग में इसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो यू विल बी लॉस्ट। अभी तो बहुत डिफिकल्टी आएंगी आपको, आपके स्किल सेट डिसाइड करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, आई एग्री। लेकिन उसके पहले आप टाइमलाइन बनाइए, आपको कहां पहुंचना है उसका पहले आप जीपीएस पे आपके एंड लोकेशन डाल दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको डायरेक्शन आने की कोशिश कोशिश आपको डायरेक्शन उससे मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या है, आप विजुअलाइज कीजिए ऑब्स्टैकल्स को। जैसे एक बैट्समैन क्रीज पे जाता है बैटिंग करने, तो उसके सामने फील्डर्स उसको दिखते हैं, और फील्डर्स के बीच में से उसको बॉल, यानी वो जो बॉल है उसको हिट करना होता है, गैप्स में उसको हिट करना होता है। आप आपके सामने उस ऑब्स्टैकल्स को विजुअलाइज कीजिए कि मेरे सामने ऑब्स्टैकल्स क्या आने वाले। अब देखिए पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। आप ऑब्स्टैकल्स को विजुअलाइज तभी कर पाओगे जब आपके सामने डेडलाइन होगा। आई रिपीट, आप तभी आपके ऑब्स्टैकल्स को विजुअलाइज कर पाओगे जब आपके सामने कोई डेडलाइन होगा। मान लीजिए आपके सामने कोई डेडलाइन ही नहीं, आपको ही नहीं पता है कि आपको करना क्या है अगले 2 सालों में, अगले 3 सालों में कहां पहुंचना है, तो ऑब्स्टेकल दिखेंगे ही नहीं आपको। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके सामने क्या ऑब्स्टेकल आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कहां पहुंचना है। तो पहले तो जैसे मैंने कहा, रिफ्रेम योर गोल्स। सेकंड, आप विजुअलाइज कीजिए ऑब्स्टेकल्स को। ऑब्स्टेकल आप विजुअलाइज करोगे तो आपको उससे मात करने की एनर्जी मिलेंगी, आपको उससे आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति तैयार होगी। तीसरा, आस्क पावरफुल क्वेश्चंस। जब भी फियर ऑफ फेलियर आता है, असफलता की भावना आती है, 3 सवाल आपको पूछने हैं। पहला सवाल है, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन। डर लग रहा है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। इसको डायरी और पेन से लिखिए। हम लिखते ही नहीं है, लिखने में बहुत पावर है दोस्तों, उसको लिखिए। व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से मैं क्या सीखा हूं, क्या सीख सकता हूं, इसको लिखिए, इसके आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिए। दूसरा, हाउ कैन आई ग्रो एज अ पर्सन फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, मैं एज अ पर्सन इससे कैसे बेहतर बन रहा हूं। कोई भी बुरी चीज आपके साथ होती है, सबके साथ होती है, दो डायरेक्शन में लोग जाते हैं।
ईयर डाउन होने के बाद एक बच्चा बहुत खराब हो जाता है, बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, बहुत गलत रास्तों पे चला जाता है, या फिर बच्चा इम्पैक्ट करता है दुनिया में, कुछ अच्छा करने का सोचता है, एज अ पर्सन नेक्स्ट लेवल पर जाता है। आपको सेकंड वाला डायरेक्शन चूज करना है, जो कि दिक्कत वाला है, डिफिकल्ट वाला है, लेकिन आपके भलाई के लिए सेकंड वाला जो ऑप्शन है, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। तीसरा, व्हाट आर द 3 पॉजिटिव थिंग्स अबाउट दिस सिचुएशन? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। मैं नया मेरा गाड़ी परचेस किया था, टाटा हैरियर, 1 साल पहले। एंड हम लोग टाटा हैरियर लेके यहाँ गए थे लवासा में। और लवासा में जैसे ही पहुंचे, ऊपर बारिश का सीजन था, वहां पे मेरे गाड़ी के 2 टायर्स बस्ट हो गए, यानी 2 टायर मेरे पंक्चर हो गए पूरी तरीके से। और वहां पे पंक्चर का कोई मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, मुझे कुछ भी, मतलब रास्ते ही नहीं मुझे दिखाई दे रहे थे यहाँ पे। एंड बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आया मुझे, क्योंकि बहुत चिड़चिड़ होने लग गई कि यार इतने दूर आए हैं, स्टेपनी का तो एक टायर ठीक है, दूसरा वाले का क्या करेंगे हम लोग? भले ही ट्यूबलेस टायर है, पता नहीं कहाँ तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत दिक्कत आई थी मुझे उस दिन। तो उस दिन मेरे अंदर फियर ऑफ फेलियर की भावना बहुत जबरदस्त जनरेट हो गई थी कि यार मैं यहाँ से गाड़ी लेके कैसे जाऊंगा, मैं असफल हो जाऊंगा, यहीं अटका रहूंगा। लेकिन मेरा जो दोस्त था मेरे साथ था, जो मेरे कॉलेज में भी मेरे साथ था, उसने सडनली मुझे एक सवाल पूछा। उसने कहा, यार तेरे पास गाड़ी है इसलिए ये प्रॉब्लम है ना, हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है। मतलब तू कितना लकी है कि एटलीस्ट तेरे पास गाड़ी है, आज इस एज में तेरे पास एक 4 व्हीलर है तेरे खुद के पैसे से, इसलिए ये सिचुएशन है। तो मेरे माइंड में भी एकदम से पॉजिटिव फीलिंग जनरेट हुई कि यार सही में मेरे पास गाड़ी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पंक्चर है, मैं उसके ऊपर क्यों फोकस कर रहा हूँ, आज मेरे पास गाड़ी। इन दैट वे यू नीड टू लर्न पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम एनी सिचुएशन। इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस बोलते हैं। जब भी आप प्रॉब्लम में है, इस तरह के सवाल खुद से पूछिए, देखो यू विल फील बेटर। तीसरा, सॉरी, फोर्थ पॉइंट, इसमें थोड़ा नंबरिंग का इशू है। फोर्थ पॉइंट इज सरेंडर एंड फील द फियर। जैसे मैंने आपको कहा, उस फियर को एक्सेप्ट कीजिए। जैसे सचिन के सामने शेन वॉर्न आने वाले थे, आउट करने की फीलिंग आई, सचिन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस फियर से डरे नहीं, उस फियर से सोने नहीं लगे या फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, उसको सरेंडर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और उसके ऊपर तैयारी में लग गए। दैट इज लास्ट पॉइंट, बी प्रिपेयर। जब भी ये भावना आपके अंदर आती है, तो आपको खुद को बोलना है बी प्रिपेयर, डरने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आशा करता हूं आपको ये सेशन आज का अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा है तो इस तरह के वीडियोस में बनाते रहता हूं, इस तरह के सेशंस में लेते रहता हूं। और मेरा मकसद है इस भारत को और मजबूत सशक्त भारत बनाना है। आप जैसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना मुझे अच्छा लगता है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में खासकर बहुत देता रहता हूँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सेशंस हो, या कंपनी जो होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज को भी सेशन देने की कोशिश करता हूँ। आप जैसे स्टूडेंट को गाइडेंस देने की कोशिश करता हूँ। मेरा प्रयास है आपको डायरेक्शन देने का, मैग्नीट्यूड की, बिकॉज सक्सेस इज अ वेक्टर क्वांटिटी माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑल आर फ्रॉम इंजीनियरिंग। I know you know the formula. Success is a vector quantity, and vector quantity is always a magnitude into direction. And I believe कि आप सब लोगों में एक अनलिमिटेड मैग्नीट्यूड है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, जबरदस्त पोटेंशियल है आप सब में। कमी होती है तो वो डायरेक्शन की होती है, और वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत होती है। एंड टू मल्टीप्लाई डायरेक्शन, एज अ मेंटर आई ट्राइड माय बेस्ट टू गिव सम काइंड ऑफ टिप्स। यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। चैनल का मैंने आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे दिया है। कुछ सवाल आपके होंगे तो आई एम इंटरेस्टेड टू टॉक विद यू। आपके सवालों के आंसर्स देने की इच्छा व्यक्त करता हूं। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू। Sir, there is a question from ओके, participants. First question is from ओके, Kamini Jain. Does that mean we have to fail compulsory to show our ability? कैन यू पार्डन दैट क्वेश्चन अगेन सर? आई डिडंट अंडरस्टूड इट। Does, हाँ, does that mean we have to fail compulsory to show our ability? नो दैट डजंट मीन वी हैव टू फेल कंपल्सरीली। ऐसा ऐसा उसका मतलब नहीं होता है। दैट मीन्स फियर इज नॉट अ नेगेटिव थॉट। जब भी आपके सामने अनफॉर्चुनेटली फेलियर आता है, सी माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कोई इंसान इस धरती पे नहीं है जिसने फेलियर नहीं देखा है। मैं करियर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी क्षेत्र में फेलियर की बात कर रहा हूं। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे फेलियर जरूर देखा होगा।
छोटा सा फेलियर हो सकता है, बड़ा फेलियर हो सकता है। आपके जॉब में आप देखोगे, या अभी नहीं देखा है तो आगे देखोगे, करियर में देखा होगा, रिलेशनशिप्स में देखा होगा, आपके डैड के एक्सपेक्टेशन पूरा करने में देखा होगा, आपके मॉम के एक्सपेक्टेशन में आपने देखा होगा, व्हाटएवर, कहीं ना कहीं आपने वो फेलियर देखा होगा। तो आज के सेशन का ये मतलब नहीं है कि फेल होना ही पड़ेगा या फेलियर होना। व्हाट डज इट मीन इज, जब भी आपके सामने फेलियर की भावना आती है, जब भी आपके सामने आपको डर सताने लगता है, तो आपने उस समय उसको इग्नोर नहीं करना है। जब भी आपके सामने फेलियर की भावना आती है, आई रिपीट, आपने उसको इग्नोर नहीं करना है, वो आपको कोई सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। लेट्स से इफ यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर एमपीएससी गवर्नमेंट की एग्जाम की, आप कोशिश कर रहे हो एग्जाम देने की, और आपके अंदर हमेशा सोते उठते वक्त एक फीलिंग हमेशा आती है कि अगर मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा, तो पापा को कैसा लगेगा, मम्मी को कैसा लगेगा। तो ये हमेशा आपको एक डर सताने लगता है कि यार मैं अगर इसमें फेल हुआ तो क्या, मैं इसमें फेल हुआ तो क्या। तो इस समय ये आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, ये एक एक्शन सिग्नल है, ये आपको सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। वो क्या सिग्नल दे रहा है, उससे भागना नहीं है, उस फियर को पहले तो पास में लीजिए, उसको आप नजदीक लीजिए। उस वो सिग्नल आपको क्या दे रहा है, वो बोल रहा है कि बी प्रिपेयर। क्योंकि आपको अगर ये फीलिंग आ रही है माय डियर फ्रेंड्स, तो जरूर आपके पढ़ाई में कुछ कमी हो सकती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कमी हो सकती है, इसलिए आपको ये फीलिंग आ रही है। इस फीलिंग से पॉजिटिव मैसेज लेना है, एंड अगेन यू हैव टू रिफ्रेम योर गोल्स। क्योंकि रिफ्रेम करना है, आपका पढ़ाई का पैटर्न आपको चेंज करना है, देखना है कि ऐसा ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। तो फेल होना कंपलसरी। आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. I हाँ, hope, Kamini, you got your answer. Next question is from Mohammad Qasim. How to set a goal to हाँ, leave our own failure? हाउ टू सेट गोल फॉर To leave our own failure. to leave our own failure. Okay, first of all, we all need to learn from failure. See, many of the times what happens is फेलियर आता है और चला जाता है, हम उससे सीखते नहीं है, बहुत बार हम उसे इग्नोर कर देते हैं। आई विल गिव एग्जांपल ऑफ विराट कोहली। इफ यू सी द बैटिंग टेक्निक्स एंड हाउ ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड 2012 से 2019-20 तक, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहे वो फिटनेस का हो, बैटिंग टेक्निक्स का हो, उन्होंने खुद को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है कि फेलियर से उन्होंने सीखा है, फेलियर के ऊपर एनालिसिस किया है। तो आप जब भी गोल सेटिंग करते हो, व्हाट आई फील इज, हम लोग 99% लोग उसको लिखते नहीं है कहीं पे, उसका कहीं पे टाइमलाइन नहीं बनाते हैं, उसको हमेशा देखते नहीं है। हमारा गोल सेटिंग हमारे मन में होता है, और वो कहीं डीप इनसाइड छुपा होता है, हम लोगों को पता नहीं होता है कि वो कहाँ है। हम लोगों को बस ऊपर ऊपर से मालूम होता है कि मेरे को 2-3 साल में एक अच्छा जॉब चाहिए, या मुझे मेरा बिजनेस एग्जैक्टली अगर किसी को बिठा के पूछा जाए कि बता बेटा तूने डायरी में कहीं लिखा है उसको, आप बोलोगे कि सर लिखने से क्या, इससे उसको देखने से आपको ड्राइव मिलता है, या आपको बार बार उसको देखने से उसमें खामियां आप निकाल सकते हो, उससे एनालिसिस करके उसमें रेक्टिफिकेशंस कर सकते हो। तो बहुत बड़ी गलती, अगर आप गोल सेटिंग करते हो तो बहुत बड़ी गलती तो ये करते हैं। अब कैसे गोल सेटिंग करना है, बहुत सिंपल है। आपको बेसिकली उसको तो लिखना है कहीं पे, उसको बार बार लिखना है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, मोटिवेशन के जो केमिकल्स होते हैं बॉडी से, वो तभी रिलीज होते हैं जब आप किसी चीज को देखते हो, जब आपको एक स्ट्रॉन्ग वाई मिलता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताने की कोशिश करता हूँ, आपको वो कनेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के जो बसेस है ना, उनके जो टूरिज्म होते हैं, जो बसेस है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में वो लाल कलर के बसेस होते हैं ना, आंध्र प्रदेश के टूरिज्म का एक्सीडेंट रेशो ये सबसे कम है। पिछले 2018 का एनालिसिस में बता रहा हूँ, उसमें बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे कि ऐसा क्या किया कि सर इतने एक्सीडेंट रेशो कम है, मतलब लगभग 0.9% एवरी 1000 किलोमीटर, इतना कम उनका एक्सीडेंट रेशो था। तो लॉजिकल आंसर्स क्या आएंगे कि सर रोड्स अच्छे होंगे, या बसेस अच्छे होंगे, जीपीएस लगाया होगा बस में, बस का कंडीशन अच्छा होगा, वट एवर। लेकिन ये सब उन्होंने नहीं किया। एक चीज आंध्र प्रदेश टूरिज्म ने क्या की, कि जब ड्राइवर अपनी सीट पर बैठेगा, जब वो बस स्टार्ट करेगा, जब उसको बस एलोकेट होगी, तो वो अपने डैशबोर्ड पे अपने फैमिली का फोटो लगाएगा, ये कंपलसरी कर दिया। अब ड्राइवर जब भी बस स्टार्ट कर देता, अपने पहले फोटो फैमिली का उधर चिपका देता था, और फिर बस अपना शुरू करता था। अब फोटो लगाने से क्या हुआ, फोटो लगाने से उसका एक गोल सेटिंग उसके सामने, कि मेरे को बस अच्छा क्यों चलाना है, क्योंकि मेरा कोई घर पे राह देख रहा है, मेरे बच्चे हैं मेरे पीछे, मेरी फैमिली मेरे पीछे है। इससे क्या हुआ, उनका ड्राइविंग सुधर गया, और वो और अच्छी तरीके से ड्राइव, एक
सिंपल सा देखो कितना छोटा चीज है कि एक फोटो लगाने से एक्सीडेंट रेशो कम हो जाता है। तो एक स्टूडेंट के मायने से, एक स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट से, हम अगर हमारे सामने, हमारे मोबाइल पे हो सकता है, हमारे लैपटॉप के सामने हो सकता है, हमारे कबर्ड पे हो सकता है, हमारे दीवार पे हो सकता है, हम लोग ऐसा एक टाइमलाइन क्यों नहीं लगा सकते? हम लोग इंजीनियर है, हम आराम से टाइमलाइन बना सकते हैं। टाइमलाइन कैसे बनाते हैं? अगला 1 साल, 2 साल, 3 साल। मेरे घर में आप देखोगे 3-4 साल ऐसा एक टाइमलाइन बना के रखा है कि जो फर्स्ट ईयर में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है, तीसरे साल में। और उसको फिर माइक्रो प्लानिंग भी करते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अगर आपने पढ़ा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर आपने पढ़ा है, आपको पता है माइक्रो प्लानिंग उसको एक्टिविटीज और टास्क में डिवाइड करना होता है। इस तरह का अगर अपन चार्ट लगाते, इस तरह का अगर गोल सेटिंग करते हैं, तो उसको देखने से हमारे अंदर कुछ जनरेट होता है और वो हमको ड्राइव करते रहता है। तो गोल सेटिंग इन सिंपल एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ, उसको लिखिए कहीं पे, और लिख के उसको कहीं पे रखिए मत। उसको लिख के हमेशा आपके सामने रखिए, ताकि वो आपको ट्रिगर करता रहे, आपके सामने वो हमेशा दिखे, आपको वो सपने दिखाए, आपको विजुअलाइज करता रहे। Okay. Sir, another question from another question is same. How to set the goal? What are factors for fear of failure? व्हाट आर फैक्टर्स फॉर फियर ऑफ फेलियर? मतलब ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से ये भावना हमारे अंदर आती है, राइट? Yes. हाँ, ये बहुत सिंपल है। बेसिकली हमारा माइंड कैसे काम करता है, देखिए। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा क्या होता है, जो जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्राइव कर रहे हो, कार पहली बार सीखते हो या टू व्हीलर पहली बार सीखते हो, आपको वो पहला दिन याद है जब आप कार चला रहे थे या टू व्हीलर चला रहे थे? आप डरे डरे से थोड़ा सा क्लच दबा रहे थे, गियर आगे पीछे कर रहे थे, आपको डर था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं पे मेरा क्लच ना ज्यादा छूट जाए। लेकिन कुछ सालों बाद जैसे ही आप वो उसको चीज को यूज टू हो गए, अभी आप ड्राइव करते करते फोन पे भी बात करते हो, बहुत बार तो आप ऑटो पायलट पे चले जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता आप घर कैसे पहुंचे, राइट? तो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड। जैसे ही कोई चीज आपके अंदर बैठ जाती है, बिलीफ सिस्टम आ जाता है, तो ये ऑटो पायलट मोड पे चले जाती है। हमारे अंदर भी एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन, हमारे अंदर कुछ थॉट्स कल्टीवेट किए गए हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम कल्टीवेट किए गए हैं, कुछ रेफरेंस पॉइंट्स हमारे अंदर कल्टीवेट किए गए हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके मम्मी का और आपके पापा सॉरी आपका और आपके मम्मी का अगर जमता नहीं है, या आपके और आपके पापा का जमता नहीं है, या फिर आपका और आपके भाई या बहन का जमता नहीं है, तो इसके पीछे अगर हम लोग थोड़ा सा रूट कॉज तक जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि पिछले कुछ रेफरेंसेस आपके माइंड में बैठे हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपके सिस्टर का एग्जांपल लेता हूँ। आपके सिस्टर का और आपका फाइट होते रहता है हमेशा। तो आपके अंदर एक भावना अंदर ऐसे कल्टीवेट की गई है कि यार ये तो ऐसी ही है, मैं ऐसा करूंगा तो ये ऐसे ही करेगी, मैं ऐसा करूंगा तो ये ऐसे ही करेगी। तो आपके अंदर ये बैठ गया है। अभी आप कुछ भी अच्छा भी अगर वो रिएक्ट करने वाली होती है, तभी आप नहीं मानते, आपको लगता है कि ये गुस्सा ही करेगी, आपसे झगड़ा ही करेगी। तो आपके अंदर ये कल्टीवेट, अभी फियर ऑफ फेलियर की बात करता हूँ। फियर ऑफ फेलियर भी एक ऐसी चीज है कि फेलियर के प्रतीक रेफरेंसेस आपके माइंड में कल्टीवेट किए गए, कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो मुझे पापा इसी तरीके से बात करेंगे, मेरी मम्मी इसी तरीके से बात करेगी, या मैं फेलियर हूं तो मैं अकॉम्प्लिश्ड पर्सन नहीं हूं, मैं परिपूर्ण पर्सन नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ खामियां है। देखिए, फेलियर को देखने का नजरिया समाज का तो हम सब जानते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। तो ये हम लोगों को इसका डर होता है कि यार मैं अगर फेल हो गया, मैंने अगर एमपीएससी का पढ़ाई किया 2 साल, और अगर मैं एमपीएससी क्रैक नहीं कर पाया, यूपीएससी का पढ़ाई किया और 2 साल नहीं क्रैक कर पाया, तो आपको विजुअलाइज होता है कि कैसे फिर आपके रिलेटिव्स आपको ताने मारेंगे कि यार 2 साल वेस्ट किया, इसने कुछ नहीं किया, देखिए हमारे रिलेटिव्स का बेटा कहाँ से कहाँ पहुंचा। तो आपको वो डर लगने लगता है कि यार आगे जाके टाइमलाइन में अगर लोग मुझे ताने देने लगेंगे या मुझे जज करने लगेंगे, या फेलियर से मुझे समझने मतलब मुझे आइडेंटिटी वो मिल जाएगी, वो स्टैंप मिल जाएगा कि ये बच्चा फेलियर है। तो हमारे अंदर ये कल्टीवेट किया गया है दोस्तों, कि फेलियर यानी बुरी चीज है, फेलियर यानी खराब चीज है, इसीलिए हम लोगों को डर लगता है। और इसीलिए डर लगता है तो इसकी वजह से इसका हम लोगों को फियर है, बाकी क्या है। और Yes, sir. Yes, sir. Very good. Sir, one more question. Amol हम्म की तरफ से, which हम्म are most common criteria to set goal? I इसका think आंसर दे दिया आपने। हाँ, इसका आंसर मैंने दे दिया है गोल सेटिंग का। यस। बाद में मनीषा की तरफ से है, हाउ टू रिड्यूस आवर फियर फुल्ली। इसका भी अभी हाउ आंसर कवर हो गया शायद, वो बस ड्राइवर हाँ, के एग्जांपल से, राइट? यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। प्रवीण पाठक का है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फियर एंड फोबिया? फियर एंड फोबिया, ओके ओके।
इसका आंसर मैं देता हूँ। ओके, फोबिया इज नथिंग बट फियर, रिपीटेटिव फियर्स के बाद हम लोगों को उसका फोबिया होने लगता है, उसका एक्सट्रीम सिचुएशन यानी फोबिया है। तो हमारे केस में आई डोंट थिंक सो करियर पर्सपेक्टिव से या फिर हमारे जॉब पर्सपेक्टिव से या फिर हमारे इन शॉर्ट करियर पर्सपेक्टिव से फोबिया हम लोगों को तो नहीं हम फेस करते। हाँ एब्सोल्युटली, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस तो होता ही है ना। अगर जीरो कॉन्फिडेंस वाला बंदा है या बंदी है जिसमें कुछ भी नहीं है, कॉन्फिडेंस बचा ही नहीं है, तो आई थिंक सो ही और शी विल फेस फोबिया। तो उसको तो अलग तरीके से ट्रीट करना होगा, उनको तो अलग तरीके से उसमें से बाहर निकालना पड़ेगा। बट हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है जो हम लोगों को बचाते रहता है, उतना ज्यादा फियर में नहीं डाल देता है कि कोई चीज का फोबिया ही आ जाए एकदम से। तो फोबिया तो आई डोंट थिंक सो इन टर्म्स ऑफ करियर पर्सपेक्टिव किसी को होगा, और क्रिटिकल सिचुएशन में 1-2% अगर किसी को है तो आई थिंक सो वी कैन टॉक पर्सनली ऑन दिस टॉपिक। Yes, sir. So one more question from Supriya. How to हाँ, keep oneself motivated and stay positive about oneself? how to keep oneself motivated? Okay, first of all you need to understand, देखिए मोटिवेशन इज नथिंग बट आपका वो ड्राइव है अंदर से जो आपको खींचता रहता है, जो आपको एक जगह पे पहुंचाने की कोशिश करता है। एज आई सेड, वो बस ड्राइवर का मैंने एग्जांपल दिया था, बस ड्राइवर्स को क्या ड्राइव करते रहता है, उनको क्या सेल्फ मोटिवेटेड रखता है? एक स्ट्रॉन्ग वाई आपके जीवन में होना चाहिए। जैसे बस ड्राइवर के सामने स्ट्रॉन्ग वाई क्या था? वाई यानी कि मुझे क्यों अच्छी तरीके से गाड़ी चलानी है, वाई आई नीड टू ड्राइव माई बस सेफली, वाई, दैट इज अ सिंपल स्ट्रॉन्ग वाई। दैट बिग वाई कीप्स यू मोटिवेटेड, दैट बिग वाई कीप्स यू सेल्फ मोटिवेटेड। तो आपके जीवन में सबसे बड़ा तो एक बिग वाई होना चाहिए कि आपके जीवन में आप क्यों सफल होना चाहते हैं, क्यों, यानी बिग वाई, वाई यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, वाई यू वांट टू अर्न मनी, वाई यू वांट टू बिकम अ रिस्पेक्टेड पर्सन, why you want to become a legend, whatever। तो ये स्ट्रॉन्ग वाई, जितना बड़ा आपका ये वाई होगा, लेट से कि आपने आपके पापा को देखना है, आई वांट टू मेक देम हैप्पी, आई वांट टू सी माय मॉम एज अ प्राउड मॉम। एक बहुत बड़ा वाई है दोस्तों ये जीवन में, कि हमारी माँ कभी बहुत ज्यादा प्राउड फील होने वाली है जब मैं इस पोजीशन तक पहुंचूंगा। ये आप अगर हमेशा विजुअलाइज करते रहोगे तो आई डोंट थिंक सो यू नीड एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन। सो in short, if you want to be self motivated, I think you should keep your parents photo in front of you, photo I mean to say in terms in your minds। आपके माइंड में उनको अगर आप बार बार सोचते रहोगे, उनके लिए कुछ करने की चाह रखोगे, तो there is no other motivation than our parents। That's true, sir. That's true. Sir, one more question from Sandeep Dhamle. How to हम्म overcome frequent failure? हम्म How to overcome the failure of slow learner? Okay, so how to overcome from frequent failure? See, why frequent failure is happening, why you're always failing? It is very simple। failure itself says be prepared, तैयार हो जाओ, फेल हो रहे हो, आप में कुछ खामियां है, आपको सुधरने की जरूरत है, आपको प्रिपेयर होने की जरूरत है। if somebody is facing frequent failures, I repeat, if somebody is facing frequent failures, then something has to change। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि एक्शन ए इज इक्वल टू रिजल्ट ए। आई रिपीट, एक्शन ए इज इक्वल टू रिजल्ट ए। नाउ यू नीड, यू आर फेड अप ऑफ रिजल्ट ए, आपको अभी रिजल्ट चेंज करने हैं। नाउ फॉर रिजल्ट बी, एक्शन किस तरीके से होने चाहिए? एक्शन भी आपको बी होने चाहिए। आपकी आपकी हम सब लोगों की गलती क्या होती है, हम रिजल्ट भी चाहते हैं लेकिन हम एक्शन ए ही लेते रहते हैं। हम समान प्रकार के एक्शन लेते रहते हैं, एक्शन ए लेने से कभी रिजल्ट बी नहीं आएगा दोस्तों। रिजल्ट बी अगर आप लोगों को लाना है तो आपको एक्शन बी लेना पड़ेगा। जैसे एक बैट्समैन बार बार कोई बाउंसर पे आउट हो जाता है तो उसको उसका शॉट चेंज करना पड़ेगा, उसको उस तरीके से बैट स्विंग नहीं करनी है जिस तरीके से वो पिछले बार आउट हुआ था, क्योंकि उस प्रकार से बैट स्विंग करने से वो बार बार उसी प्रकार के फ्रीक्वेंट फेलियर में आउट हो जाएगा। तो ही नीड टू लर्न कि चलो मेरे टेक्निक में खामियां है, मेरे पढ़ाई करने के पैटर्न में खामियां है। जैसे कोई अगर बार बार सॉन्ग में फेल हो रहा है, सॉन्ग अगर नहीं क्रॉस हो पा रहा है, तो हमारे पैटर्न्स को बदलना पड़ेगा, सॉन्ग को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा, पढ़ाई करने का पैटर्न बदलना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, रियलिटी को फेस करना पड़ेगा, ना कि उससे भागना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट, एक्शन ए इज इक्वल टू ऑलवेज अ रिजल्ट ए। फॉर रिजल्ट बी यू नीड टू टेक action, change your action, and you will not see that kind of failure again and again।
That's true, sir. That's true. Shubham, you can start. Yes, sir. I am Shubham Solanke. I would give my gratitude for expressing thanks to the speaker and entire team behind the webinar. I would like I would like to thanks Avinash Bhaskar Chate sir for spending his valuable time and giving us the overcoming our fears of failures and its important in our life. I would like to thanks Dr. S.P. Bhosle sir, principal of MIT College Aurangabad, and Rashmita Srinivasan, HOD of Civil Engineering Department, for the support to the organize the webinar. I would like to thank all the organizing team behind the screen. Last but least, I would thanks for all the participants for actively participation. We have received huge response from all over India. Actually, this webinar has become pan India webinar and connected all the delegates who work fear of failures. Participants are requested to just check the feedback form link shared in the chat box with password. Please fill the feedback form. Certificates of participations would be sent to your register mail ID 20 July. Thank you all. Okay, sir. Yes.